Namaste Gurukulians. Beta, how are you? I think you are fit and fine, beta. In the last topic we studied about speed and velocity, uniform velocity, about variable velocity, about average velocity, and about instantaneous velocity we talked about. Okay. Today, beta, we will study about acceleration. Next topic is, beta, acceleration. Till now, beta, you have studied that what is distance, what is displacement. Okay, both are having same unit and dimension, but something difference is there, I have told you. And the same thing is with speed and velocity, something difference is there, both have same dimension, एक ही तरह की होती हैं, but some differences are there, I have told you. Now beta, third term is totally different, that is acceleration. Okay, now listen, what do you mean by acceleration? Beta, in case of speed, I told you that speed was the rate of change of distance. Okay, but and velocity was the speed was the rate of change of distance, and velocity was the rate of change of displacement. Okay, now acceleration will be the rate of change of velocity is called acceleration. Is called acceleration. Okay, final. But I tell you one thing. I told you on that day that velocity is the rate of change of position or displacement. Velocity was the rate of change of position or displacement. Okay, and acceleration is the rate of change in वेलोसिटी. इसका ये मतलब हुआ कि बेटा जो रिलेशन वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में होता है वही रिलेशन एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में होता है. ओके, मीन्स द रिलेशन बिटवीन सन एंड फादर इज सेम एज द रिलेशन बिटवीन फादर एंड ग्रैंडफादर. ओके, इट मीन्स वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट and acceleration is the rate of change in velocity. It means v and displacement have the same relation as acceleration and the v, acceleration and the velocity. Okay, so acceleration is the rate of change of velocity is called acceleration. Clear? Now what will be a formula? Acceleration will be equal to change in velocity upon time टेकन. ओके बेटा, मैं इसका फिजिकल मीनिंग आपको बताता हूँ. इसका मतलब क्या होता है. फिलहाल आपने सिर्फ ये लिखना है, एक्सेलरेशन है द डेफिनेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन एंड इट्स फॉर्मूला इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. ओके, नाउ टेल मी व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन. नाउ टेल मी SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड एंड SI यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड मीटर पर सेकेंड. हियर लिसन, SI यूनिट of acceleration. Listen, what is the unit of velocity? Meter per second. And what is the unit of change in velocity? Again meter per second. Because change का मतलब होता है बेटा final value minus initial value. And while subtracting there is no effect on the unit. सब्ट्रैक्ट करने पे और ऐड करने पे यूनिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता. सो जो यूनिट वेलोसिटी की होगी वही यूनिट चेंज इन वेलोसिटी की होगी, मीटर पर सेकेंड. Upon time has unit second, 2 times second are there. This is also in divide, this is also in divide. Then unit of acceleration will be meter per second square. So SI unit of acceleration is meter per second square. Clear? Now tell me what will be the dimensional formula of acceleration. Dimensional formula of acceleration you everyone know because you have studied in first chapter, that is L1 t minus 2. Okay, final. And the dimensional formula of displacement is L. Dimensional formula of velocity is Lt minus 1. Dimensional formula of acceleration is Lt minus 2. Why 2? Because here square of time is there. So t has power minus 2 because second square is in divide. Okay, आपको सिर्फ ये लिखना है acceleration की definition, formula, unit, dimensional formula. Only this. अब इसका मतलब आपको बताता हूँ. What is the meaning of it? Okay, definition, rate of change in velocity is acceleration. Formula is this, change in velocity upon time taken.
SI unit is this and dimensional formula is this, LT minus 2. Now beta, this was acceleration. Now 4 types of acceleration may be. Listen, now I will tell you what is the significance of acceleration. What is the meaning of acceleration in daily life? How we can recognize acceleration in a motion? Listen. Now beta, types of acceleration. In the similar way as we studied in speed and velocity, there are 4 types. One was uniform speed, second was non-uniform speed, third was average speed, and fourth was instantaneous speed. So, types of acceleration. 4 types, you know. One is uniform acceleration. Now beta, I will tell you its meaning. What is the meaning of acceleration? बेटा अभी आपने एक बात देखी कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। बेटा एक बात देखी, मैंने कहा चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अभी भी इस बात का मतलब आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं बताता हूँ। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जब वेलोसिटी में चेंज कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा, इक्वल टाइम में। कैसे, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज यू स्टार्टेड द मोशन एट 0 सेकेंड, आपने 0 सेकेंड पे चलना स्टार्ट किया। इन 1 सेकेंड योर वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड। इन 2 seconds your velocity is 4 meter per second. In 3 seconds your velocity is 6 meter per second. इसका ये मतलब हुआ कि सेम टाइम में ना आपकी बॉडी की वेलोसिटी में सेम चेंज आ रहा है। इन 1 second change is 2 meter per second. In again this 1 second again change is 2 meter per second. Again this 1 second again same change is there. इसका मतलब हुआ है कि जो चेंज हो रहा है ना वेलोसिटी में, वो हर तरफ क्या हो रहा है, हर बार सेम हो रहा है, इक्वल टाइम में इक्वल चेंज हो रहा है। इसका मतलब है कि एक बात कंफर्म हो गई। बेटा सुनो, अगर बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, तो कंफर्म है कि एक्सेलरेशन है। अब सुनो, अच्छा बताना, ये यहाँ पर एक्सेलरेशन है कि नहीं है। आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया 0 सेकेंड से। इन 1 सेकेंड योर स्पीड इज 2 मीटर पर सेकेंड। इन 2 सेकेंड योर स्पीड इज 3 मीटर पर सेकेंड। In 4 seconds your speed is 10 meter per second. 2 cases are there. One case is this, one case is this. Tell me in which case acceleration is there? Acceleration बेटा दोनों में है, क्योंकि वेलोसिटी दोनों में चेंज हो रही है। But it has uniform acceleration and it has non-uniform acceleration. Why this is non-uniform? Because बेटा in same time interval, यहाँ पर तो बेटा 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी में चेंज हुआ, 2 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर 1 सेकंड में कितना चेंज हुआ, 1 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे 1 सेकंड, सॉरी दिस इज 3, 1 सेकंड में कितना चेंज हुआ, 7 मीटर पर सेकंड। दिस मीन्स दिस मोशन इज हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड दिस मोशन इज हैविंग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो बेटा वहाँ पे होता है जहाँ पे वेलोसिटी में चेंज हो रहा हो, चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन है, इन दोनों में एक्सेलरेशन है। बट कहाँ पे यूनिफॉर्म है, it is having the uniform acceleration and it is having non-uniform acceleration. बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि अगर वेलोसिटी में चेंज है वो सेम हो सेम टाइम में। इफ सेम चेंज इन वेलोसिटी इज देयर इन सेम टाइम देन वी से दैट एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, एंड इफ सेम चेंज इज नॉट देयर इन सेम टाइम देन वी से दैट दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और आपको बच्चे पता है यूनिफॉर्म का दूसरा नाम क्या होता है, कांस्टेंट, और नॉन यूनिफॉर्म का दूसरा नाम क्या होता है, वेरिएबल। ओके, final. Now beta, I am giving you very good example of uniform acceleration. If I drop a chalk from some height and air is not there, अगर air नहीं है और अगर मैं किसी चौक को ड्रॉप कर रहा हूँ, then the chalk comes down with uniform acceleration of 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा अब मेरी बात गौर से सुने, आपने ये बात हमेशा पढ़ी होगी इन 9th क्लास, acceleration is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर when a body falls down without air, एयर नहीं होनी चाहिए, in the absence of air। इसका बच्चे मतलब पता है क्या है, गौर से सुनिए बेटा। इसका मतलब ये है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9.8 मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड। इसका मतलब ये है जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे आती है ना, उसकी वेलोसिटी में हर 1 सेकेंड के बाद इतना चेंज आता है। उसकी वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड।
हर सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, 9.8 मीटर पर सेकंड। यानी कि जब मैंने बॉडी को छोड़ा 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 9.8 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड में कितनी हो जाएगी, इसको डबल कर दो। 3 सेकंड में कितनी हो जाएगी, इसको डबल कर दो। इन दिस वे हर सेकंड में जो चेंज होगा ना वो कितना होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड। ओके, नाउ कैलकुलेट एक्सेलरेशन हियर। यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होगा, टेल मी। चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पे बताइए कितना होगा, चेंज इन वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना है, 1 सेकंड, तो आंसर कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे बताओ कितना है, अगेन 2 आएगा। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, पूरे मोशन में एक्सेलरेशन कितना रहेगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा। लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है, यहाँ पे अलग अलग इंटरवल में आंसर भी क्या आएगा आपका, अलग अलग पॉइंट्स पे आंसर भी आपका क्या आएगा, अलग अलग आएगा। क्लियर, ओके। तो मैं आपको एक बात बता दूं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में किसी भी एक इंटरवल में निकाल लो या पूरे मोशन में निकाल लो, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा एक आएगी। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में अलग अलग इंटरवल का आंसर भी क्या आएगा बेटा, अलग अलग आएगा। ओके, इसको हम और ज़्यादा डिटेल में कैसे पढ़ेंगे, आई विल टेल यू नाउ बेटा। योर फर्स्ट डेफिनेशन इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड व्हाट द डेफिनेशन ऑफ इट, आई एम टेलिंग यू, if same change in velocity is there in every same interval of time. Listen, I am writing the definition of uniform acceleration. I am writing the definition of uniform acceleration. Definition is, if during motion same change is there in velocity in every same interval of time. In every same interval of time. अगर मैं किसी बॉडी को ऊपर से ड्रॉप कर रहा हूं तो बेटा उस बॉडी का एक्सेलरेशन हमेशा यूनिफॉर्म है और कितना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर, फाइनल। और बेटा वो एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म। और बेटा एक बात सुन लीजिए, वो यूनिफॉर्म कब है, जब एयर नहीं है तो। और अगर एयर भी हो गई तो फिर वो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं होगा बेटा, क्योंकि एयर की डेंसिटी भी लगातार क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। क्लियर, दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और अगर मैं मोशन की बात करूँ, मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, आफ्टर 1 सेकेंड माई स्पीड इज 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, आफ्टर 2 सेकेंड इट इज़ 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर 3 सेकेंड इट इज़ 6 मीटर पर सेकेंड। देन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन विल बी चेंज इन वेलोसिटी। कोई भी इंटरवल ले लीजिए, यूनिफॉर्म है तो कहीं भी ले लीजिए इंटरवल, आपका आंसर एक ही आएगा। तो आंसर इज, लिसन, इट विल बी चेंज इन वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम टेकन इज 1 सेकेंड। इसका मतलब क्या है, हर सेकंड में कितना चेंज आ रहा है बेटा, 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी में जो है चेंज आ रहा है। दिस इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर, ये एग्जांपल लिखने की खास जरूरत नहीं है, आई एम ओनली मेकिंग यू अंडरस्टैंड हाउ टू डू इट, हाउ वी कैन फाइंड द एक्सेलरेशन। और मैं आपको एक बात और बता दूं, मोशन, पूरे मोशन में किसी भी पॉइंट पे एक्सेलरेशन देख लीजिए और पूरे मोशन का देख लीजिए, एक्सेलरेशन सेम आएगा अगर वो यूनिफॉर्म है तो। क्लियर, दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। Clear? And it has another name also, constant acceleration. Constant and uniform are having the same meaning. Okay. Now beta, next point, next type is non-uniform acceleration. बस बेटा आपने क्या करना है, आप ये कहेंगे, अब इसमें आपने क्या लिखा, if during the motion same change is there in velocity in same interval of time. Okay. उसमें क्या करना है, नॉन यूनिफॉर्म में आपको क्या करना है, इफ ड्यूरिंग मोशन अनइक्वल चेंज इज देयर इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल। दो इक्वल 2 बार है ना, तो दोनों में से किसी एक इक्वल को आपने क्या कर देना है, अनइक्वल कर देना है। इसका रीज़न मैंने आपको कब बताया था बेटा, जब मैंने आपको नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आपको बताया था कि 2 इक्वल आएंगे, दोनों में से किसी एक को क्या कर देना है, अनइक्वल कर देना है। क्लियर, फाइनल। अब देखिए इसका आपको एग्जांपल देता हूँ।
Okay, listen. Example. Suppose you started your motion from here. After 1 second, your velocity is suppose 2 meter per second. After again 1 second, your velocity is 3 meter per second. After again 1 second, this is 1 second. Here, this is 2 second. Here 3 second, its velocity is suppose 10 meter per second. Now tell me, this is uniform acceleration or not? No, because in this 1 second, change in velocity is 2 meter per second. In this 1 second, the change in velocity is 1 meter per second, and in this second, change in interval is 7 meter per second. Change in velocity means in every time interval, change in velocity is different. So this acceleration is non-uniform acceleration, and its another name is, tell me, its another name is variable acceleration. Okay, final, its another name is variable acceleration. और बेटा हम कहीं भी जाते हैं बाइक पे, प्रैक्टिकली हम अगर कहीं भी जा रहे हैं तो मेरा जो मोशन होता है वो हमेशा कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म ही होता है. मोशन भी नॉन यूनिफॉर्म होता है और एक्सेलरेशन भी मेरा क्या होता है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म. क्लियर? नाउ टेल मी बेटा, इफ आई एम स्टैंडिंग, नाउ टेल मी एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म और नॉट? इफ आई एम स्टैंडिंग, यूनिफॉर्म. व्हाई? बिकॉज माई वेलोसिटी इज जीरो एट एवरी टाइम. माई वेलोसिटी at starting it is 0, after 1 second velocity is 0, after again 2 second velocity 0, 3 second velocity is 0. जब वेलोसिटी ही हर पॉइंट पे 0 है तो चेंज भी कितना हो रहा है, हर टाइम पे 0 है, 0 0, चेंज भी 0 है. इसमें इट मीन्स एक्सेलरेशन इज 0. तो 0 कांस्टेंट तो है ना, इट मीन्स अगर मैं खड़ा हूँ तो भी मेरा एक्सेलरेशन बेटा कितना होगा, 0 होगा. बिकॉज एट एवरी टाइम माई वेलोसिटी इज 0. तो जो वेलोसिटी ही 0 है तो चेंज इन वेलोसिटी बेटा कितने हो गई, 0 हो गई. क्लियर? So this is the non-uniform acceleration. Now the next point is variable acceleration. Oh sorry, average acceleration. Third point is average acceleration, and it is very important, beta, very important. And everyone know, जहाँ भी एवरेज मीनिंग आता है, वर्ड आता है, तो इट हैज़ ओनली वन मीनिंग, दैट टोटल बाय टोटल. जैसे एवरेज वेलोसिटी वाज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड वाज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. ओके, इन द सेम मीनिंग एवरेज एक्सेलरेशन विल बी, इट विल बी द रेशो ऑफ, टेल मी, इट विल बी द रेशो ऑफ टोटल change in velocity to total time taken. Okay, so average acceleration will be total change in velocity upon टोटल टाइम टेकन. बेटा टोटल का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, ये बहुत अच्छा एक मीनिंग है. इसमें हम किसी इंटरवल की बात नहीं करेंगे. अब लिसन कैसे, सपोज एट स्टार्टिंग योर वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड. ओके, आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर 50 सेकेंड योर वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड. आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर 50 सेकेंड, 50 सेकेंड चलने के बाद आपकी वेलोसिटी बेटा कितनी हो गई, सपोज 2 मीटर पर सेकेंड. टेल मी व्हाट इज योर एवरेज एक्सेलरेशन. बेटा एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा पता है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी. टेल मी व्हाट इज द टोटल चेंज, 2 - 0, 2. एंड व्हाट इज टोटल टाइम, 50 सेकेंड. आंसर कितना आ जाएगा, 2/50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब एक खास बात और सुनिए, पूरे मोशन में मैंने अलग अलग पॉइंट की तो बात ही नहीं की, छोटे छोटे इंटरवल की तो मैंने अंदर बात ही नहीं की. इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैंने किसी इंटरवल की बात ही नहीं की तो एवरेज का मतलब होता है पूरे मोशन का जो हमें क्या देता है, इन्फॉर्मेशन देता है कि जो पूरे मोशन है ना उसका जो एवरेज आंसर है वो कितना आया, 2/50 मीन्स 1/25. हम इसमें अलग अलग इंटरवल की बात ही नहीं कर रहे, हमको पूरा जो एक आंसर मिल गया पूरे मोशन के लिए. ठीक है, एक एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास. और एक बात आपको और बता दूं बच्चे, ये बात नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. इन केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है तो बेटा चाहे आप उसका किसी भी पॉइंट पे एक्सेलरेशन निकालें,
या किसी इंटरवल पे एक्सेलरेशन निकालें या पूरे मोशन का एवरेज एक्सेलरेशन निकालें, सभी का आंसर हमेशा क्या आएगा बेटा, सेम आएगा। किसी पॉइंट पे निकालें, किसी इंटरवल पे निकालें और चाहे पूरे मोशन का निकालें एवरेज, आंसर आपका क्या आने वाला है बेटा, सेम आने वाला है। बट इफ एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म, तो बेटा आपके सभी आंसर जो हैं वो क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। आपका किसी पर्टिकुलर पे कुछ और हो सकता है, इंटरवल पे कुछ और हो सकता है, और पूरे मोशन का जो है बेटा आपका वो आंसर कुछ और हो सकता है इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? नाउ दिस वाज द एवरेज एक्सेलरेशन। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, वी विल ट्राई इट, वी विल डू इट। ओके, दिस वाज एवरेज एक्सेलरेशन। नाउ लास्ट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, बेटा इसको करने से पहले एक बात और ध्यान में आइए बेटा, ध्यान से देखिए। जब आपने अभी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किया था ना बेटा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मैंने आपको कहा था हर सेम टाइम में आपका जो चेंज इन वेलोसिटी वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ओके, और बेटा मैंने टाइम अभी इंटरवल एग्जांपल आपको जितने भी बताए थे, सब में कितना मैंने एग्जांपल लिया था, 1 सेकंड का लिया था एग्जांपल, क्योंकि 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 0 सेकंड मैंने आपको एग्जांपल लिया था। हेयर स्पीड वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, हेयर इट इज 4 मीटर पर सेकंड। बेटा एक बात गौर से सुन लीजिए, जब आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ रहे हैं ना, तो इंटरवल चाहे जितना भी छोटा ले लें, फिर भी हर सेम टाइम इंटरवल पे चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा बेटा, सेम होगा। मैं बात कर रहा हूँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, नॉन यूनिफॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जो मैंने इंटरवल 1 सेकंड का लिया था, चाहे आप 0.1 सेकंड का ले लें, चाहे 0.01 सेकंड का ले लें, कोई भी छोटे से छोटा इंटरवल ले लें, हर इंटरवल पे चेंज इन वेलोसिटी बेटा क्या होगी, सेम होगी। क्लियर है ना बेटा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टेंटेनियस? इंस्टेंटेनियस हैज़ द मीनिंग एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। Okay, as we have studied in instantaneous speed and instantaneous velocity, we have studied. Okay, now beta listen, what is the meaning of instantaneous acceleration? It means to find acceleration at particular instant is called इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इट्स कॉल्ड बेटा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ओके, लिसन हाउ, सपोज आई एम गोइंग ऑन द रोड, इनिशियली आई स्टार्टेड फ्रॉम टाइम इज इक्वल टू 0 सेकेंड, एंड व्हेन टाइम इज 3 hours 20 minutes 15 seconds एंड सेकंड के भी आगे पार्ट कर दो 100 पार्ट 14। ये बेटा टाइम बहुत छोटा है ना, और बेटा इसके भी आगे टुकड़े होंगे, ये भी जो छोटा टाइम आया ना ये वाला। अब एक मैंने जो मोशन लेना है, मैंने देखिए एक गाड़ी जा रही है, मुझे किसी ने कहा कि पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन निकालें। अब इंस्टेंट क्या होता है, टाइम इंटरवल। लिसन, मैंने टाइम ले लिया 3 hours 20 minutes 15 सेकेंड और इसका 14th पार्ट, सेकेंड का भी 14th पार्ट। फिर एक बार ले लिया 3 hours 20 minutes 15 सेकेंड 15th पार्ट। तो ये 14 और 15 के बीच में टाइम बेटा कितना होगा, बहुत कम होगा ना। उसको मैंने एक पॉइंट मान लिया, क्योंकि टाइम बहुत कम होगा, मैं इसको पॉइंट मान सकता हूँ। ओके, उस टाइम पे अगर आपका एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या करेंगे आप, तो इस टाइम पे सपोज ये टाइम यहाँ पे आ गया, ये तो बेटा कितना है 14, ये वाला टाइम कितना है बेटा सपोज कीजिए 15। तो इस टाइम में ये टाइम इज, दिस टाइम इज वेरी वेरी स्मॉल, दिस टाइम इंटरवल इज वेरी वेरी स्मॉल। सो इन दिस टाइम इंटरवल change in velocity will also be very small. It means acceleration will be delta v upon delta t. Delta v is the small change in velocity in very small interval, and delta t is the size of this time interval.
It means acceleration will be delta v upon delta t and limit delta t approaches to 0 and it can be written as dv by dt and dv by dt everyone know it is the differentiation of v with respect to t. क्लियर बच्चे? अभी मैंने आपको बात कही थी वेलोसिटी हमने क्या किया था, याद है? वेलोसिटी मैंने आपको किया था dx by dt और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ dv by dt. इसका एक मतलब हो गया जो रिलेशन v और x में होता है वही रिलेशन बेटा एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में होता है. और यहाँ पर x क्या है उस दिन मैंने बताया था, इसको पोजीशन भी आप ले सकते हैं और इसको आप डिस्प्लेसमेंट भी ले सकते हैं. क्लियर? फाइनल? तो दिस इज द, तब भी मैंने आपको एक एग्जांपल लिया था स्मॉल इंटरवल का. और बेटा एक बात बताऊँ, आपने कहा सर ये टाइम इंटरवल तो बहुत कम होगा. इस टाइम इंटरवल के भी 1 करोड़ पार्ट होते हैं, अरब पार्ट होते हैं, इनफाइनाइट, छोटे से छोटा टाइम इंटरवल. लेकिन इतनी दूर हमने कहाँ जाना है, हमको तो एक समझना है. तो इस छोटे से टाइम इंटरवल में अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे? इन दिस वे, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी. और बेटा आप ये बात और भी लिख दे तो ज़्यादा अच्छा है. You know everyone, velocity is the vector quantity and similarly acceleration is also the vector quantity. क्योंकि अगर किसी वेक्टर को किसी स्केलर से डिवाइड करते हैं तो बेटा अगेन जो क्वांटिटी आती है वो कौन सी आती है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी आती है. क्लियर? फाइनल? ये छोटी छोटी बातें हो गई. अब आपको बड़ी ज़रूरी बात बतानी है बेटा, इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल बहुत अच्छे करेंगे, बहुत अच्छे सारे न्यूमेरिकल, काफ़ी सारे न्यूमेरिकल इसके ऊपर हम करने वाले हैं. नाउ लिसन, अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट इज देयर. चलो ये तो 4 पार्ट हो गए इसके. अब करते हैं बेटा छोटी सी डेफिनेशन. क्या बेटा एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है? एक्सेलरेशन क्या बेटा नेगेटिव भी हो सकता है? देखिए, नेगेटिव एक्सेलरेशन. अभी आपने क्या पढ़ा? एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो बेटा एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा. अब टाइम तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता. एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा अगर चेंज इन वेलोसिटी क्या हुई? नेगेटिव हुई. और चेंज नेगेटिव कब होता है पता है? जब कोई चीज़ कम हो जाती है ना पहले से, तो उसमें चेंज नेगेटिव होता है. जैसे मेरे पास पहले 10 रुपये थे, अब मेरे पास 2 रुपये रह गए, तो चेंज कितना हुआ? -8. क्योंकि चेंज होता है बेटा फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू. 2 - 10 इट इज़ इक्वल टू -8. क्लियर? तो अगर कोई वेलोसिटी कम हो रही हो तो उसमें चेंज कैसा होगा? नेगेटिव. एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव. अच्छा बताइए, एक बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? पॉजिटिव, बिकॉज वेलोसिटी बढ़ रही है. जब वेलोसिटी बढ़ रही है तो चेंज क्या होगा? पॉजिटिव होगा. अगर मैं किसी बॉडी को ऊपर फेंकूँ तो वेलोसिटी बेटा क्या हो रही है? कम हो रही है. कम हो रही है तो बेटा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका? अगर कोई बॉडी ऊपर जा रही है तो हम क्या लेंगे बेटा? उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव ले लेंगे, क्योंकि बॉडी की जब वेलोसिटी कम हो तो चेंज नेगेटिव हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है? और अगर वेलोसिटी ज़्यादा हो तो बेटा चेंज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा. और अगर चेंज पॉजिटिव हो जाएगा तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा बेटा? पॉजिटिव हो जाएगा. तो हम ये लिखेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन में व्हेन वेलोसिटी ऑफ बॉडी रिड्यूसिस. जब बॉडी की वेलोसिटी क्या होती है बेटा? कम होती है. व्हेन वेलोसिटी ऑफ बॉडी रिड्यूसिस, ओके, देन चेंज इन वेलोसिटी इज नेगेटिव. हेंस एक्सेलरेशन इज नेगेटिव. तो एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा? नेगेटिव हो जाएगा. कैसे मैं आपको बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ. सपोज मैंने यहाँ से मापना शुरू किया, 0 सेकंड से मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया. एक गाड़ी आ रही है, मैं यहाँ पर खड़ा हो गया, मैंने 0 सेकंड पे ऑब्जर्व करना शुरू किया. तो 0 सेकंड पे ऑब्जर्व किया ना, गाड़ी मेरे यहाँ से निकली तो उसकी वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकंड. जरूरी थोड़ी है कि जहाँ से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ वहाँ से बॉडी स्टार्ट ही होगी. हो सकता है वो पहले कहीं से आ रही थी तो मैं खड़ा खड़ा उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ. तो एट 0 सेकंड्स फॉर इट्स वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड. एट 1 सेकंड, गौर से सुनिएगा, एट 2 सेकंड
at 3 seconds. बेटा टेल मी वन थिंग, दिस एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव, बिकॉज आप पहले तो ये बताइए बच्चे, एक बात यहाँ से आपको देखने में क्या दिख रहा है, ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है बेटा? आप कहेंगे नेगेटिव, वेलोसिटी क्या हो रही है बेटा? कम हो रही है। दूसरी बात, ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? हर सेम टाइम इंटरवल में सेम चेंज हो रहा है। देखो यहाँ भी -5 का चेंज हो रहा है, यहाँ भी -5 का चेंज हो रहा है, यहाँ भी -5 का चेंज हो रहा है। तो हम इसको ये कहेंगे ये यूनिफॉर्म भी है और ये नेगेटिव भी है। और एक बात और बता दूँ बेटा, अच्छा एक बात और गौर से सुनिए बेटा, ये बहुत ज़रूरी बात है। अगर बेटा मैंने आपको ये कह दिया ना कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, अभी पक्का नहीं पता चला यूनिफॉर्म है कि नहीं है, क्योंकि यूनिफॉर्म के लिए ज़्यादा तब पता चलेगा जितना छोटा इंटरवल हो जाएगा ना, उतनी ही क्लियरिटी आ जाएगी माइंड में कि ये यूनिफॉर्म है। इंटरवल छोटे से छोटा ले तो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। 0.0001 सेकेंड ले, ठीक है ना। हम यूनिफॉर्म मोशन एक्चुअल में तब बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है जब इंटरवल बेटा क्या हो, छोटे से छोटा हो। लेकिन चलो मानने में हम ये मानेंगे कि हर सेम टाइम में हम इसको यूनिफॉर्म कहेंगे। अब हमें थोड़ी पता है कि बीच में क्या हो रहा है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ना ये यूनिफॉर्म है कि नहीं है, यस यूनिफॉर्म, क्लियर, फाइनल, दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। एंड व्हाट इज द वैल्यू, टेल मी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन, टेल मी व्हाट इज चेंज। कोई भी ले लीजिए, यूनिफॉर्म है तो हर जगह क्या आएगा, हर इंटरवल में आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, क्लियर है। तो कितना आ जाएगा ये, फाइनल माइनस इनिशियल, मैं इस इंटरवल की बात कर रहा हूँ, अपॉन दिस इज 0 सेकेंड, दिस इज 1 सेकेंड। तो आप कहेंगे द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये नेगेटिव भी है और ये बेटा यूनिफॉर्म भी है। अच्छा आप कहेंगे सर ऐसा भी हो सकता है, अच्छा ये बताना, आप बताना क्या है। ये नेगेटिव तो है, कहीं भी चले जाइए, चाहे इंटरवल देख लीजिए, चाहिए कोई भी देख लीजिए, नेगेटिव एक्सेलरेशन तो है। जो बेटा एक्सेलरेशन है बेटा वो क्या है आपका, नेगेटिव है हर पॉइंट पे। और बताइए यूनिफॉर्म है कि नहीं है, नो, नॉन यूनिफॉर्म। ये पक्का कंफर्म हो गया, हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है, लेकिन यूनिफॉर्म नहीं है, क्लियर। अच्छा अब बताइए बच्चे, यहां से लेके यहां तक बेटा एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव। आगे देखो वेलोसिटी बढ़ गई तो चेंज पॉजिटिव हो गया ना, तो इसके बाद एक्सेलरेशन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। पीछे से लेके यहाँ तक एक्सेलरेशन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, आगे एक्सेलरेशन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और यूनिफॉर्म है कि नहीं है, नहीं। यूनिफॉर्म कैसे हो सकता है, यूनिफॉर्म तो हो ही नहीं सकता, चेंज सेम नहीं हो रहा, क्लियर है। ये छोटी छोटी बातें और ज़्यादा क्लियर आपको होंगी, धीरे धीरे हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे बेटा अच्छे से, क्लियर। तो दिस इज द नेगेटिव एक्सेलरेशन। और एक बात आपको और बता दूँ, नेगेटिव एक्सेलरेशन का दूसरा नाम क्या होता है, यू नो, नेगेटिव एक्सेलरेशन का दूसरा नाम होता है रिटार्डेशन या डीएसेलरेशन। दो नाम होते हैं, या तो कह सकते हो डीएसेलरेशन या कह सकते हैं रिटार्डेशन। याद रखो, अगर किसी न्यूमेरिकल में कोई एग्जाम में न्यूमेरिकल आ गया ना जिसमें लिखा हुआ है ए बॉडी इज मूविंग विद रिटार्डेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब ये समझ लीजिए कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, क्योंकि नेगेटिव वर्ड इसके अंदर अपने आप छिपा हुआ है। अगर उसने कह दिया ना ए बॉडी इज मूविंग विद रिटार्डेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो समझ लीजिए, क्योंकि आपको तो न्यूमेरिकल में एक्सेलरेशन पुट करना है। अरे ए ही तो आएगा न्यूमेरिकल में, जितने भी न्यूमेरिकल गए उसमें ए आएगा, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू कितनी है, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर। तो जहाँ भी रिटार्डेशन है उसका ये मतलब है कि उसमें नेगेटिव मीनिंग जो है वो अपने आप क्या है बेटा छिपा हुआ है। तो इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके बाद, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देखिए, बस एक क्वेश्चन इसके ऊपर कर लेते हैं बड़ा अच्छे से। छोटा सा क्वेश्चन वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, वो 15 सेकंड चली और 15 सेकंड के बाद दोबारा आके रुक गई।
चली भी रेस्ट से थी और 15 सेकंड के बाद रुक भी गई, वो दोबारा फिर रेस्ट पे आ गई। तो बताइए बेटा व्हाट विल बी एवरेज एक्सेलरेशन? बेटा टोटल चेंज कितना है? पहले बाद में भी जीरो, पहले भी जीरो। हमने टोटल चेंज की बात करनी है, इनिशियल और फाइनल को लेना है बस। तो बेटा टोटल चेंज कितना आ जाएगा वेलोसिटी में? टोटल टाइम बेटा कितना है? तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बेटा? जीरो। क्लियर? एक्सेलरेशन बेटा एवरेज एक्सेलरेशन, दिस इज नॉट एक्सेलरेशन, दिस इज एवरेज। एवरेज एक्सेलरेशन बेटा कितना आ जाएगा आपका? जीरो आ जाएगा। चलिए बेटा आपसे क्वेश्चन पूछूं, एक गाड़ी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, ओके, अनदर क्वेश्चन इज हियर, ए कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ओके, between time 0 second to 20 second. A car is moving with uniform velocity. Tell me what will be its acceleration at every time. अगर बेटा किसी गाड़ी का मोशन कैसा है, वेलोसिटी कैसी है बेटा, अगर मैं कहूँ ना एक गाड़ी का मोशन यूनिफॉर्म है या मैं कहूँ कि एक गाड़ी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, एक ही बात है। मोशन का मतलब किससे होता है? वेलोसिटी से होता है। और अगर एक गाड़ी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है ना बेटा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो बेटा अभी मैंने कहा एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अरे बेटा छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कोई भी इंटरवल ले लें, जब बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो मतलब बॉडी की वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं हो रहा, किसी भी टाइम में जीरो चेंज हो रहा है, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा ना। If a car is moving with uniform velocity beta, then its acceleration in every interval, in any time interval is zero. उसका जो acceleration होगा बेटा वो हर टाइम इंटरवल में कितना हो जाएगा बेटा? जीरो हो जाएगा। क्लियर? In every time interval its acceleration will be zero. So बेटा हम बहुत सारे क्वेश्चन इसके बारे में करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे बेटा ना। बेटा नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द व्यू ऑफ एग्जामिनेशन बेटा। You everyone know about 3 equations of motion as you have studied in your 9th class. Now, equations of motion. You know everyone, there are 3 equations of motion, okay, but in 9th class you described these equations with the help of graphs, by graphical method, but here we will use integration method to derive the equations of motion. 3 relations are there, 3 equations are there. First equation is v is equal to u plus at. Second equation is s is equal to ut plus half at square. And third equation is v square minus u square is equal to 2as. In 9th class you studied, you derived these relations by graphs, but here we will derive these relations by integration. Equation of motion by integration भी कह सकते हैं या कैलकुलस भी कह सकते हैं। इंटीग्रेशन और कैलकुलस मेथड। क्लियर ना बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्राइव v इज इक्वल टू u प्लस at. बेटा यू नो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इक्वेशन? वेलोसिटी टाइम रिलेशन. द नेम ऑफ दिस रिलेशन इज बेटा वेलोसिटी टाइम रिलेशन. क्लियर? चलिए बेटा, एज वी नो, एक बात सुन लीजिए, इस रिलेशन का नाम है वेलोसिटी टाइम। तो वेलोसिटी और टाइम से अलावा यहाँ पे और कोई नहीं आना चाहिए, एक ही बस आपका वेलोसिटी और टाइम होना चाहिए। मेरी बात गौर से सुनना, मैं आपको धीरे धीरे सारी बातें बताऊंगा।
तो एक बात बताइए, वेलोसिटी और टाइम का कोई फॉर्मूला बताइए जिसमें वेलोसिटी और टाइम अकेले होते हों, ठीक है। और ऐसे देखो, आपको मैं एक बात इसके बाद बताऊंगा, ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। एज वी नो dv/dt इक्वल टू a, अभी हमने पढ़ा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। ओके फाइनल, हम किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर सकते हैं। हमने बात की कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे एक्सेलरेशन कितना है, dv/dt है, क्लियर। और यहां से मैं आपको ये कह सकता हूं dv इज इक्वल टू a dt कह सकता हूं बेटा मैं आपको। और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, और आपको एक बात बता दूं, इंटीग्रेशन में एक लिमिट होती है, लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, और लिमिट उसी के आती है जिसके साथ डी होता है। डी किसके साथ है, वी की। तो इसका मतलब पता क्या है, जब मोशन है ना, मोशन, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, फाइनल वेलोसिटी कितनी है v। अब कोई मोशन स्टार्ट हुआ है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी बेटा कितनी है, सपोज u, और फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी है, सपोज v। और जब हमने मोशन, अब यहां पर बेटा लिमिट किसकी आएगी, d के साथ कौन है, t, जो d के बाद है, इसमें d के बाद v था, तो इनिशियल वेलोसिटी, और ये क्या है आपके पास, फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पे d के साथ t है, तो इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल टाइम को हमेशा बेटा आप कितना लेके चलते हो, 0। हम कोई भी टाइमर जब सेट करते हैं तो उसकी वेलोसिटी क्या सेट करते हैं, 0t। अब बेटा मेरी बात गौर से सुनेंगे आप, एक बात गौर से सुनिए, इसका ये मतलब हुआ 0 सेकंड पे आपकी वेलोसिटी कितनी थी, u, तो t टाइम पे आपकी वेलोसिटी कितनी आ गई, v आ गई। यानी कि मैं t टाइम पे वेलोसिटी निकाल सकता हूं कितनी आएगी, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि v वेलोसिटी कितने टाइम के बाद आएगी। दोनों चीजें आप यहां से निकाल सकते हैं। ओके, आपको ज़्यादा क्लियरिटी से बताऊंगा ये चीज़ें। तो ये मोशन ऐसा हो गया कि एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चली, एक बॉडी एक वेलोसिटी से चली, u वेलोसिटी से चली, और t टाइम के बाद उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, उसकी t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी बेटा कितनी हो जाएगी। ओके, ना बेटा व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dv, v, आप कहेंगे कैसे, क्योंकि dv के साथ कुछ भी नहीं है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, जब dv के साथ कुछ नहीं है तो इसको हम मान सकते हैं 1, और 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं v की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर बेटा 0 क्या होती है, 1 होती है, तो मैं 1 को लिख सकता हूँ v की पावर 0। और इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, पावर में 1 ऐड कर देते हैं, और जो प्लस करके नंबर आता है वो नीचे आ जाता है, तो v की पावर 1/1 इज इक्वल टू v। ओके, सो दिस विल बी द इंटीग्रेशन, एंड लिमिट u टू v। लिसन, इन 9th क्लास आपने एक बात पढ़ी थी बेटा, जो ये 3 इक्वेशन है वो तभी वैलिड होंगी अगर एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, कांस्टेंट होगा। तो एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट हो तो आपको सर ने आपको पहले चैप्टर में बताया है कि कांस्टेंट टर्म जो होती है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाती है। तो dt का इंटीग्रेशन इसकी तरह से बिल्कुल कितना हो जाएगा, t, लिमिट 0 टू t। नाउ बेटा व्हाट विल बी देयर, पुटिंग द लिमिट्स, अपर लिमिट पुट करो फिर लोअर लिमिट, इसकी जगह अपर लिखो v माइनस लोअर लिखो, ठीक है। ऐसे ही एक बार इसको ऊपर लिखो, एक बार लोअर लिखो, तो v माइनस u इज इक्वल टू at एंड v इज इक्वल टू, बेटा आपको एक बात बताऊं मैंने इसको, अब मैं आपको सारी बातें बता रहा हूं, इसका यूज क्या है। लिसन बेटा, इसका यूज ये है कि अब मैंने आपको इसका नाम, इस इक्वेशन का नाम क्या है बेटा, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इसका नाम बेटा क्या है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। आप कहेंगे नहीं सर, वेलोसिटी और टाइम से अलावा तो एक चीज़ और भी है यहाँ पे, एक्सेलरेशन। बेटा एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है ना, हमने एक्सेलरेशन को क्या अज्यूम किया बेटा, कांस्टेंट अज्यूम किया है। तो कांस्टेंट, ये जो यहाँ पे दो नाम आए हैं ना वो वेरिएबल हैं। वेलोसिटी भी वेरिएबल है, देखो v आपका वेरिएबल है, t आपका क्या है, वेरिएबल है, इसे इसको नाम दिया वेलोसिटी टाइम। a भी कांस्टेंट है, u इनिशियल वेलोसिटी भी बेटा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। कोई भी स्टार्टिंग चीज़, अब मैं आपको एक बात कहता हूँ, सपोज बेटा
इंडिया गोट फ्रीडम इन 1947। आज सपोज कीजिए देश को आज़ाद हुए बेटा, सपोज 73 ईयर्स हो गए हैं, 73। आज से 100 सालों के बाद हम क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे ना कि इंडिया गोट फ्रीडम इन 1947। वो चीज़ तो कांस्टेंट हो गई ना, 1947 तो वही का वही नंबर फिक्स हो गया। तो इनिशियल वेलोसिटी फिक्स हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो ये दोनों तो आपके कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। वेरिएबल कौन है? v और t, सो वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो आप t टाइम के बाद v निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, और v वेलोसिटी कितने टाइम के बाद होगी, हम टाइम भी, यानी कि अगर आपको v दिया हुआ है, t निकालना है, फिर भी आप इस इक्वेशन का यूज करेंगे। t दिया हुआ है, v निकालना है, तब भी आप इसका यूज करेंगे। या किसी इक्वेशन में आपको दोनों दिए गए हैं, दोनों, और आपको a निकालना है या u निकालना है, तब भी आप इसका यूज करेंगे। तो बताइए बेटा आप इसका यूज कब करेंगे? जब आपको v दिया हो, t निकालना हो, t दिया हो, v निकालना हो, या v और t दोनों दिए गए हो, इन दोनों में से कुछ भी निकालना हो, तो आप आंख बंद करके बेटा इस इक्वेशन का यूज करेंगे। क्लियर? अब इस क्वेश्चन में है क्या? शुरू में आपकी वेलोसिटी कितनी है बेटा? u। t टाइम के बाद आपको क्या निकालनी है? अपनी वेलोसिटी निकालनी है, मेरी वेलोसिटी कितनी होगी। और एक्सेलरेशन आपको क्या दिया हुआ है बेटा? कांस्टेंट दिया हुआ है। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। इस तरह से आप इसका आंसर। और अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया ना बेटा कि t टाइम के बाद आपको वेलोसिटी निकालनी है, तो आपको पता चल गया कि ये फॉर्मूला लगेगा, देन एक्सेलरेशन विल बी गिवन टू यू, it will be given to you. I will do the numericals further. Okay, this is the equation. So beta, in 3 cases this formula is applicable. If v is given, t to be found out. If t is given, v is to be found out. And if v and t both are given and u or a is to be found out, then we use the equation v is equal to u plus at. ना बेटा केस अराइज व्हेन a इज नॉट कांस्टेंट। सपोज अगर किसी क्वेश्चन में जो a है बेटा वो कांस्टेंट नहीं होता, तो फिर a बाहर नहीं आएगा। फिर क्वेश्चन सोल्व कैसे करते हैं वो हम न्यूमेरिकल में करेंगे डायरेक्ट। यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे हमको सिर्फ a को क्या लेना है? कांस्टेंट लेना है, इसको बाहर निकाल देना है इंटीग्रेशन से। क्लियर? दिस इज वेलोसिटी टाइम रिलेशन। नाउ टेल मी व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस इक्वेशन? एस इज डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो, आप इसको पोजिशन भी कह सकते हो। तो अब क्या बेटा व्हाट विल बी द इक्वेशन? डिस्प्लेसमेंट। अभी मैंने आपको कहा बेटा u को भी हम फिक्स मानते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को हम फिक्स मानते हैं, और a को भी हमने कांस्टेंट लिया। देन दिस रिलेशन विल नेम एज द डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, बिकॉज इसमें दो ही वेरिएबल है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। तो बताइए आप इसको यूज कहाँ करेंगे? जैसे ये आपकी वेलोसिटी टाइम रिलेशन थी, तो आपने यूज किया, वेलोसिटी दिया हुआ है, टाइम निकालना है, या टाइम दिया हुआ है, वेलोसिटी निकालना है, या दोनों दिए गए हो, इन दोनों में से कुछ भी निकालना हो, तो इसका यूज करते हैं। ऐसे डिस्प्लेसमेंट टाइम में कैसे करेंगे? डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, टाइम निकालना है, टाइम दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, या दोनों दिए गए हैं, कुछ और निकालना है, जैसे कि u और a। ठीक है, ऐसे बेटा व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस रिलेशन? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। एंड वेयर इट विल बी यूज? तो वेलोसिटी दी गई हो, डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, डिस्प्लेसमेंट दिया हो, वेलोसिटी निकालनी हो, एंड व्हेन बोथ आर गिवन, और कुछ और निकालना हो। कुछ और मीन्स u और a में से कुछ भी निकालना हो, तो हम इसका यूज कर लेते हैं। ओके बेटा, वी विल डू सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नाउ बेटा वी हैव टू प्रूव s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर अगेन बाय कैलकुलस मेथड। ओके, नाउ लिसन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर अगेन बाय यूजिंग कैलकुलस मेथड। ना बेटा दिस वाज वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? dv बाई dt इज इक्वल टू a, बिकॉज इट वाज वेलोसिटी टाइम रिलेशन। नाउ बेटा इट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, एंड वी विल स्टार्ट इट एज फ्रॉम dx बाई dt इज इक्वल टू v। ओके, dx बाई dt इज इक्वल टू v। क्लियर? नाउ बेटा लिसन, और dx विल बी इक्वल टू v dt। Now I told you this is displacement time relation. Its name is displacement time relation.
तो बेटा इस इक्वेशन में कहीं भी डिस्प्लेसमेंट और टाइम से अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए, बट यहाँ पे वेलोसिटी आ गया। सो वी हैव टू रिमूव इट, हमको इसको रिमूव करना है, बिकॉज आई ओनली वॉन्ट टू थिंग्स इन दिस इक्वेशन, टू वेरिएबल इन दिस इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, नथिंग एल्स, बट here velocity is there. So we have to remove this term from here. Now what to do? Now put the value of v from the previous result. V is equal to u plus at. Then beta, put the value of v, u plus at dt. Now beta, here only displacement is there and time is there variable, and u and a are again, these are taken as fixed. Clear? Or integrating both sides, again take dt with both, one for this side and one for this, then it will be u dt plus at dt. It's separate integration, separate. Now tell me beta, what will be the limits of integration? x1 to x2. x1 क्या है? इनिशियल पोजीशन, हम पहले कहाँ खड़े थे। x2 क्या है? फाइनल पोजीशन, हम बाद में कहाँ खड़े। Here the limit will flow for t. Starting time will take only always 0 from stopwatch, and final time as t. Here also interval is t. Clear? Now beta, again tell me what will be the integration of dx? x, x1 to x2. Okay, here u is fixed. I have told you beta, u is taken as fixed. Take it out of the integration, and dt will remain inside, and its integration will be t. Then it will be 0 to t. Clear? Beta, here a is constant, it will come outside, and inside it is t dt. बेटा ये क्या हो गया? अगर a बाहर आएगा तो अंदर क्या रहेगा? t dt. एंड यू नो व्हाट इज दैट इंटीग्रेशन ऑफ t dt? t स्क्वायर बाय 2. ना बेटा, पुटिंग द लिमिट्स, एक बार x को x2 रखो, एक बार x को x1 रखो. अगेन हेयर 1/2 को बाहर निकाल लीजिए, एक बार t पुट कीजिए, एक बार 0. बेटा इफ x1 वाज इनिशियल पोजीशन, x2 वाज फाइनल पोजीशन, तो बेटा चेंज इन पोजीशन आपको पता है क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट. s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर. दिस इज सेकेंड रिलेशन. और बेटा इसका नाम क्या है? डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, बिकॉज u एंड a आर फिक्स्ड. ओके, एंड वेयर दिस रिलेशन इज यूज्ड, वेयर डिस्प्लेसमेंट इज गिवन, time is to found out. Time is given, displacement to be found out, and when both are given, anything else a or u to be found out, then we use this type of equation, s is equal to ut plus half a square. और बेटा एक बहुत जरूरी बात, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो फिर हम यहाँ पर a को बाहर नहीं निकालेंगे, तो इसके हम न्यूमेरिकल करेंगे, यहाँ पे इसको नहीं करेंगे. यहाँ पर केवल हमने कांस्टेंट एक्सेलरेशन को डिस्कस करना है. अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी आप ये रिलेशन यूज कर सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए स्क्वायर. अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो बेटा आप इनको यूज नहीं कर सकते. उनको यूज कैसे करना है मैं आपको न्यूमेरिकल में एक 1.5 आवर का मैं आपको एक लेक्चर, एक वीडियो आपको भेजूंगा जिसमें हम कंप्लीट न्यूमेरिकल इसके करेंगे. नाउ बेटा लास्ट इक्वेशन इज देयर, थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. दिस इज वेरी लार्ज इक्वेशन बेटा, एंड दिस इज वेरी गुड इक्वेशन. v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. very and very important relation this is. v square minus u square is equal to 2as, last equation, and the name of it is, now tell me what is the name of this equation? Velocity displacement relation. Velocity displacement relation. बेटा लिसन, वेलोसिटी, मुझे कैसे पता चला इसका नाम वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट है? बिकॉज इट हैज टू वेरिएबल, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, दीज बोथ आर फिक्स्ड. ओके, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन. और बेटा मुझे एक बात का जवाब दीजिए, तो मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ? जब मैंने वेलोसिटी टाइम किया था तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था.
जब मैंने डिस्प्लेसमेंट टाइम किया बेटा तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और क्या होती है, चेंज इन पोजीशन ही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। नाउ व्हाट टू डू, फ्रॉम वेयर आई हैव टू स्टार्ट वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट। बेटा डू वन थिंग, लिसन, नाउ वी कैन डू वन थिंग, लिसन, you know as dv by dt is equal to acceleration and dx by dt is equal to v, divide both, then what will be there, dv by dt by dx by dt is equal to a by v, dt is cancelled by dt, dv by dx will be equal to a by v, cross multiplying, it will be v dv is equal to a dx, v dv is equal to a dx, integrating both sides, now integrating both sides। बेटा आप कहेंगे कि सर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों किया, बिकॉज हमने सेम वेरिएबल को एक तरफ लाना होता है, हम इसको इधर ले आए और हम आगे कुछ कर ही नहीं सकते, सेम वेरिएबल एक साइड पे आ गए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, देन इट विल बी v dv a dx एंड लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन विल बी फ्रॉम u to v, बिकॉज बेटा लिमिट किसकी आएगी, वेलोसिटी की आएगी, d के साथ v है इनिशियल वेलोसिटी एंड दिस इज फाइनल वेलोसिटी, एंड हियर इट विल बी ऑफ x1 एंड x2, बिकॉज लिमिट हमेशा उसकी आती है बेटा जो d के बाद होता है, इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज फाइनल पोजीशन। नाउ व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन, एवरीवन नो, इफ दिस इट्स पावर इज 1 देन ऐड 1 इन पावर एंड इट विल बी v स्क्वायर अपॉन 2 विल बी देयर इंटीग्रेशन, हियर डन इन योर चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिकल टूल्स। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x dx, यू नो पावर में एक ऐड कर देते हो और 1 + 1 2 नीचे आ जाता है, this is the integration of x dx, so what will be the integration of v dv, v square upon 2, okay, is equal to a is constant, take it out of integration, and what will be integration of dx, x, limit x1 to x2, now it will be put upper limit v square by 2, lower limit u square by 2, a x2 minus x1, upper limit minus lower limit, now take two LCM and cross multiply it, then it will be v square minus u square is equal to 2a x2 minus x1, what is x2 minus x1, change in position, and what is the meaning of change in position, this is displacement, so v square minus u square is equal to 2as, and its name is velocity displacement relation because u and a are fixed values. Now tell me where this equation will be used, v square minus u square is equal to 2as, where this will be used, where its name is velocity displacement, and this will be used where velocity is given, displacement to be found out, or where displacement is given, velocity to be found out, or when both are given, anything other means u and a is to be found out, anything का मतलब यही होता है u and a, क्योंकि ये दोनों फिक्स होते हैं। तो बेटा लास्ट थिंग आपको एक बात बता दूं, पहली लेसन क्या थी, vt मीन्स अगर वेलोसिटी दिया गया हो टाइम निकालना हो, या टाइम दिया गया हो वेलोसिटी निकालना हो, या दोनों दिए गए हो एनीथिंग एल्स निकालना, एनीथिंग एल्स मीन्स u and a, तो पहली इक्वेशन का यूज करेंगे। दूसरी इक्वेशन थी आपके पास st, s दिया हो यानी कि डिस्प्लेसमेंट दिया हो, टाइम निकालना हो, टाइम दिया हो डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, या दोनों दिए गए हो एनीथिंग एल्स निकालना, u और a, देन वी यूज सेकंड इक्वेशन, ओके। एंड थर्ड रिलेशन वाज vs, if v is given s is to be found out, and if s is given v is to be found out, and if both are given anything other is to be found out, u and a, then we use v square minus u square is equal to 2as, okay. So these are the three equations and one equation more is left, and we will discuss in on next video, okay beta. If you have any problem then you can ask anything in WhatsApp group, okay beta. And in the next video we will discuss that remained topic and also numericals, okay beta. Goodbye.